we will now start with the capital busting techniques. Up till last class, we have already seen some capital busting questions, or I should rather say that we have already known that when we talk about a capital busting decision, the very important thing is first to determine the cash flows, inflows and outflows. And if we have the informations, if we are able to calculate the inflows and outflows correctly, we can then decide that which particular or the optimum technique of capital busting we can decide or we can opt, so that we can come up with the right decision whether we should go with the project or not, right? तो अभी तक जो हमने कैपिटल बस्टिंग में डिस्कशन किया, we mainly talked about a few things. The very first thing, how to decide or determination of initial cash outflows, ने बात की इसके अलावा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सीएफटी कैसे निकाला जाता है, विच इज कैश इनफ्लोज, उसकी टेक्निकलिटीज को भी समझा कि क्या हमें कंसीडर करना है, क्या हमें इग्नोर करना है इन स्पेसिफिक सिचुएशन. नाउ once we in a position to know how to decide, how to determine the initial cash outflows or CFT, thereafter it is very important for all of us to understand decision criteria. Yes, decision criteria. Decision criteria of what? Decision criteria of evaluation of capital busting project. अब आपको ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि जो आपने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का इनिशियल कैश आउटफ्लो देखा, जो आपने सीफेट देखा, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव, इज इट इन द लाइन ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव और नॉट. इसका मतलब हम यहाँ पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग प्रोजेक्ट, एंड इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट हम तब तक इन प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट नहीं कर सकते जब तक we do not have the techniques to evaluate. यानी कि what we need now, techniques, it means capital busting techniques. यानी ये कैसे पता लगाएं कि जो हमने कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज निकाले सक्सेसफुली, अब उन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को किस तरह से एनालाइज किया जाए, किस तरह से ये देखा जाए कि क्या ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लाइन में है और दे आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और दे आर degrading the values of the shareholders. So very important consideration is capital busting techniques. So it is the second part of the capital busting discussion, which is to know about the capital busting techniques. So we are now going to start with this capital busting technique. Capital busting technique. कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के बारे में अब देखना जरूरी है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है हम क्या देखने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं. यस क्लास? यस सर. यस. ओके. When it comes to the capital busting technique, we need to understand capital busting techniques are bifurcated into two different categories on the basis of one assumption, which is the common assumption, whether we should discount the future money or we should not discount the future money. कहने का मतलब क्या है, जो आप कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे,
हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें फ्यूचर मनी को, जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाली है, क्या उसको डिस्काउंट करना है प्रेजेंट में या नहीं करना है. नॉर्मली वी हैव ऑलरेडी सीन in the time value of money chapter, in second chapter, it is important to discount the future money so that we can compare the future money in term of present money, right? लेकिन जब हम कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक की बात करते हैं तो दो तरह की टेक्निक्स हमारे पास आती हैं, which are non discounting technique and discounting technique. Discounting techniques or non discounting. Now we need to understand what are these discounting and non discounting techniques. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. ये टेक्निक्स है क्या? Discounting and non discounting. First of all, अच्छा, can anyone tell me what are the discounting and non discounting technique? क्या होता होगा, उनका मतलब क्या है? Discounting technique is that technique which we goes from future Sorry. present. Please explain it again. So discounting technique is that technique in which we goes from future period to present period. Okay, fine. And non-discounting technique class? See, non-discounting technique, basically, what does it mean by the non-discounting? It simply means it does ignore the time value of money concept, right? Does ignore time value of money concept. इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी कैपिटल बस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस बेस पे वैल्यूएट किया जाएगा, कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट मींस डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स वुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. यानी ये जरूरी नहीं है कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी है. दिस नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट मींस फ्यूचर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का कंपैरिजन किया जाए. नॉर्मली द आउटफ्लोज दे आर प्रेजेंट आउटफ्लो. हमने देखा काफी सारे क्वेश्चंस में देखा इनिशियल कैश आउटफ्लो यानी कि जो टाइम पीरियड जीरो में हुआ, और वही पूरे क्वेश्चंस का आउटफ्लो होता था. तो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस कि नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या अमाउंट है, क्या मिलने वाला है, प्रेजेंट में क्या अमाउंट आप दे रहे हैं. वो डायरेक्ट उनको माइनस करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, एंड देन इट विल let you know, it will let us know whether we should go with the project or we should not go with the project. Yes class, समझ आया नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या है? यस. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ दीज टेक्निक्स. जब हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करते हैं, हमारे सिलेबस में दो तरह की टेक्निक्स के बारे में बात की गई है. वन इज पे बैक पीरियड. Payback period. And the second one is accounting rate of return. Accounting rate of return, which is also known as ARR. ARR. यानी कि आज की क्लास का जो हमारा टास्क होगा, द मेन टास्क इज टू कंप्लीट और टू अंडरस्टैंड द नॉन डिस्काउंटिंग इनफ्लोस टेक्निक. यानी कि ये जानना व्हाट आर दीज टेक्निक्स और कैसे इनका यूज किया जाता है. वी विल आल्सो सी
the advantages of using, or not so good advantages, it means the disadvantages or the limitations of using these different techniques. डिस्काउंटिंग टेक्निक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. ऑब्वियसली जो हम जिसके ऊपर हमारा एम्फोसाइज शुरू से रहा है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें कंसीडर करना चाहिए, उसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. बट पहला हमारा जरूरी हो जाता है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना. तो आई एम गोइंग I'm going to start with the non-discounting technique. आई होप हमें समझ आया है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है. सीधी सी बात, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं करते, जबकि होना चाहिए डिफरेंस, राइट. तो दे आर normally known as the traditionals. They are the traditional techniques. Traditional, traditional technique. Yes, class. ठीक है. तो please take the screenshot if you want. Done, sir. Now, okay, fine. Good. अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन डिस्काउंटिंग में पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड, देखिए, एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट टॉक्स अबाउट अ पीरियड, इट टॉक्स अबाउट द टाइम पीरियड, राइट. ये कहीं ना कहीं टाइम पीरियड की बात करता है. पे बैक पीरियड, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स the time period in which the initial investment is recovered by the business, right. यानी कि ये उस टाइम पीरियड की बात करता है कि कितने वक्त में आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं. एम आई क्लियर क्लास? पे बैक पीरियड, Yes, sir. right. So payback period talks about the period, first of all, period of recovering what? Initial investment. देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. There is an initial cash outflow. Initial cash outflow is given, which is 1 lakh, and cash inflows are given as follows. Cash inflows are given like this. For example, first year 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 20,000. They are the number of years. Now, ये आपके inflows है. My question is, can you tell me what is the payback period of this question? 4 years. Sir, 4 years. 4 years. Why? Yes, four Sir, years. because Now, yes. at the end of fourth year, we have recovered all 1 lakh rupees. Exactly. In first 4 years, if you look at the total, so cumulative in inflows की हम बात कर लेते हैं. Cumulative inflows. If you talk about the cumulative inflows, 20,000, 50,000, 90,000, and 1 lakh, 100,000. It means you are able to
recover your 1 lakh rupees within 4 years only. So therefore, this time period, 4 years, is a payback period. Payback period. Okay, next एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा. Question remains same, this 1 lakh, but inflows informations are different. First year 10,000, second year 20,000, third year 30,000, fourth year 30,000, fifth year 20,000, 25. Now, अब इस क्वेश्चन में अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव इनफ्लोज ऐड करें, क्यूमुलेटिव इनफ्लोज CI 10,000, 30,000, 60,000, 90, 110,000 and 135,000. Now, can you tell me what will be the payback period in this question? So First 5 years. अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर, राइट. तो देखा जाए 4 साल में आप सिर्फ 90,000 रिकवर कर पा रहे हैं. फिफ्थ ईयर आप देखा जाए पूरे साल में आप 110 कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इन फिफ्थ ईयर, पूरा फिफ्थ ईयर तो नहीं होगा, 4 ईयर तो कंप्लीट है, राइट. 4 years दे आर कंप्लीटेड ईयर्स. Plus, if you are recovering 20,000 rupees, if you are able to recover 20,000 from the fifth year, it means the rest 10,000 we can average out the 10,000 rupees in 6 months. Is or no? yes, sir. Right. Yes. बाकी 10,000 हम ये मान सकते हैं कि वो 6 half year में आए होंगे. तो it means 6 months. तो instead of saying कि ये 5 साल में रिकवर हुआ है, we can say the payback period is 4.5 year. Yes, class. Yes, sir. बहुत सिंपल है. लेकिन हमें जब बात करनी है पेबैक पीरियड की, तो हमें सिर्फ पेबैक पीरियड के बारे में बात नहीं करनी, हम इसके लिमिटेशंस, इसके यूटिलिटी के बारे में भी बात करेंगे. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मेथड? आई मीन, ये प्रोजेक्ट है, इसमें तो आपको कुछ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, राइट. आपने कैश इनफ्लोज निकाले, कैश आउटफ्लोज निकाले, फिर आपने उन्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में ऐड कर लिया, एंड देन यू गेट टू नो कि कितने साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, राइट. बट what do you think? Is there any problem with this? क्या ये बहुत सही तरीका है Yes, प्रोजेक्ट्स को sir. जज करने का? Yes, sir. अच्छा, ओके, कैसे? सर हर साल उस मनी की वैल्यू डिप्लीट हो रही है. मतलब वो 1 लाख जो हमने इन्वेस्ट किए थे, जो आउटफ्लो था, वो 1 लाख नहीं रहेंगे जब तक हमारा रिकवर होगा उतना अमाउंट. वो उससे राइट, कम राइट. होगा कुछ. देखिए, पेबैक पीरियड सिंपल से आपको क्या इन्फॉर्मेशन बताता है. मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज. If the payback period is 4.5 year, it simply means that this payback period 4.5 year will suggest you it will take 4.5 year to recover your initial investment. We are not talking about the profits. Yes, class? ठीक है. In this technique we are concerned about initial investment only. यानी हमने जितना पैसा लगाया, हम उतना ही क्या रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात करते हैं. ये क्लियर है बात? राइट. So Yes, this sir. project is not concerned about what? Not concerned about profits. Profits हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, देखिए, ये देखिए ना,
आगे वाले फ्लोज हमें क्या हुए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ा, हमें सिर्फ ये पड़ा फर्क कि कितनी जल्दी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे। ठीक है। साथ में इस मेथड की एक लिमिटेशन ये भी है, जो मेन लिमिटेशन दिख भी रही है, which Pyoti she has correctly pointed out, कि this has a problem of what, not discounting the time period। आपने 1 लाख आज खर्च किया, हो सकता है उसकी 5 साल में वैल्यू हो जाए 1,10,000, लेकिन आप उसकी सिर्फ पार वैल्यू या पार वैल्यू को आप कंसीडर कर रहे हैं, ना कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। यानी फेल टू फेल्ड टू नो प्रेजेंट वैल्यू। यस क्लास, ये भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये टेक्निक अगर इतनी ही खराब है तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक इन वेरी फर्स्ट प्लेस? सोचिए कैसी सिचुएशन में ये टेक्निक यूजफुल होती होगी बिजनेसेस के लिए। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन दैट व्हेन बिजनेस आर मोर कंसर्न अबाउट रिकवरिंग द मनी। सर जो जैसे फॉर एग्जांपल हम आईटी कंपनीज को लेंगे, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखेंगे, हाँ बहुत जल्दी इनोवेशन आता है, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ही रिकवर हो जाए, तो उनको उसका फियर रहता है कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। देखिए ये तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट द आईटी सेक्टर इंडस्ट्री व्हिच यू पॉइंटेड आउट हियर, बट दिस टेक्निक इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन अनसर्टेनिटीज। In case of war situation, in case of world war, the serious war in a country, like we are seeing these things in Middle East, and now we are seeing in Southern Asia as well, in Afghanistan. So what we can see in such a situation, people are not very concerned about the profits. They are concerned about their initial investment only, that how quickly they can just pull out their investment from the market in timely manner. तो जब हम बात करते हैं इस टाइम पे बैक पीरियड की, ऑल्दो इसमें लिमिटेशन, बहुत लिमिटेशन है, it is never recommended to any business, but in time of crisis, uncertainties, obviously crisis always bring uncertainties in time of war, which is the byproduct of crisis, right? या आप बात कर सकते हैं डिप्रेशन की, यानी रिसेशन किसी कंट्री में है, ऐसी सिचुएशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालिए जितना जल्दी। तो ये पे बैक पीरियड मेथड तब हेल्पफुल है जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कंसर्न। यस क्लास, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताइए। नो। नो ओके, सर। तो अब बहुत सिंपल है, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ से जो समझना जरूरी है। इफ आई टॉक अबाउट दिस पे बैक पीरियड, सिंपल है, if there are two projects in front of you, two projects irrespective of their money involvement, कितना पैसा गया है, आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे? अगर ये सिचुएशन है, किस तरह का पे बैक पीरियड आप प्रेफर करेंगे दो प्रोजेक्ट्स के केस में? दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। बताइए। सर हेलो, हेलो हेलो, यस। सर, मैं कह रहा हूँ ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए, क्राइसिस वाला और वॉर वाला। हाँ देखिए, जब हम क्राइसिस की बात करते हैं या अनसर्टेनिटीज की बात करते हैं, जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल रहेगा, हो सकता है आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़े, तो उस केस में हर बिजनेस ये सोचता है कि एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पर आए। ब्रेक इवन कब होगा? जितना पैसा आपने लगाया एटलीस्ट उतना पैसा भी अगर आपका वापस आता है, तो यू आर इन पोजिशन ऑफ हैविंग द ब्रेक इवन पॉइंट और रियलाइजिंग ब्रेक इवन पॉइंट।
So in such a time when you are not having any income, there is a lot of uncertainty in the market. You don't know whether how the business will react, how the situation will be helpful or not. तो उस केस में पेबैक पीरियड आपको ये टाइम पीरियड एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इतने टाइम में आप अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएंगे. तो it means in normal situation payback period has nothing of use, right? But when it comes to this situation, unprecedented situation, yes, payback period provides you the indication how much time it will take for your investment to realize or to give you the revenue back, right? और एटलीस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में वापस रियलाइज कर पाते हैं. ठीक है. ओके ठीक है. सर. अब हम बात कर रहे हैं दो प्रोजेक्ट्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बात की थी, एक प्रोजेक्ट को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. ये समझ आया? यस सर. तो अगर हम बात कर रहे हैं दो प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट बी, तो आप किस तरह का प्रोजेक्ट प्रेफर करना चाहेंगे? यानी पे बैक पीरियड की अगर आप बात करें, कैसा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आप प्रेफर करना चाहेंगे? सर जिसका पे बैक पीरियड टाइम सबसे कम होगा कम दोनों में होगा, से. राइट. सीधी सी बात है, आप वही प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग की बात तो कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं. तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को ही आप लेना चाहेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं. तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द केस, पे बैक पीरियड ऑफ ए इज लेसर, तो यू विल गो फॉर प्रोजेक्ट ए. वाइस वर्सा इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट बी, इफ इट इज लेसर देन ए, तो आप बी के साथ जाएंगे. ठीक है क्लास? यस. यस सर. यस सर. अब हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट मान लेते हैं कि आपके पास ए बी सी डी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं. यानी जरूरी नहीं कि ए को एक्सेप्ट करें तो आप बी को रिजेक्ट करें, आप ए को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सबको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं. उन्हें कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. जिसका एक दूसरे प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता. तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप ऐसे प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली एक प्री डिटरमिन्ड रेट पर देखेंगे. आपने मान लीजिए प्री डिटरमिन्ड आपका एक रेट है पेबैक पीरियड कि 3 साल में पैसा वापस आ जाना चाहिए, 3 years. तो द प्रोजेक्ट हैविंग द लेसर पेबैक पीरियड, 2.5 साल में आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी. लेकिन जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट 5 साल में रिकवर हो रही है, आप उस प्रोजेक्ट को, ऐसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को आप नहीं जाएंगे उसके साथ, आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. यस सर. राइट. तो ये कुछ पे बैक पीरियड के बारे में है एंड आई होप पे बैक पीरियड आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा. ठीक है क्लास? यस सर. ओके फाइन. तो यहाँ तक अगर आपको डाउट है पे बैक पीरियड के बारे में तो प्लीज लेट मी नो. एंड देयर वाज वन न्यूमेरिकल आई वांटेड टू डिस्कस इन क्लास. सो फर्स्ट वी should discuss that numerical and I will also relate it with the payback period. ठीक है. बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है और आप लोग इसे शायद यू माइट बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं. Shall I remove this? यस सर. Okay, fine. अब कितने होंगे स्टूडेंट्स? Seriously, you can't even imagine how disappointed I always am when I enter your class. Seriously. मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसके बाद भी just 4 5 6 स्टूडेंट they enter the class and I don't even know what's is any problem with me or you problem have this, you people have this problem because it is very difficult ना. मतलब मेरे लिए तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में. You won't believe when I was just right after your class, very first class when I started my income tax class, there was 88 students today out of 90, and all of them they were there in the class throughout the time period. Even it took me more than 35 minutes to end that class. They were asking a lot of questions like, sir ये कैसे होता है, सर आपने ये बताया,
And I was also somewhere I was confused. I was like, yeah, मुझे अभी नहीं पता. I looked at it. You know how enjoy in how we teacher feel that when students are coming in a very large number, they all taking participation. इतना अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इवन आई फील माई सेल्फ कि उसमें मेरी वैल्यूएशन भी होती है, बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट एंटर द क्लास विदाउट प्रिपेयरिंग द लेक्चर, बिकॉज आई नो देर आर 80-90 students, they will ask the question. I know I should be there with everything gets right. My facts should be right in class. Hmm, I know you people cannot do this, and I'm not blaming you, but the class form you come. Seriously, for the first time I'm taking, this is the last time I'm taking BCom program classes. I will never take the BCom program in my life again. It is the very first time I'm taking the BCom program in my last 3.5 year career. I'm seeing this. मुझे पहले लगता था कोई फर्क नहीं होता बच्चों में, but I am seeing a lot of, you know, biggest changes or change difference. पता नहीं आप क्लास लेना क्यों नहीं चाहते, मुझे ये समझ नहीं आता. देखो एक चीज मैं समझता हूँ, मैं एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी भी. मुझे पता है अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो एक होता है कि ठीक है यार, हमारा टाइम वेस्ट होगा. बट जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं इतना भी खराब नहीं पढ़ाता कि आप लोग क्लास में आए और आपको ना समझ आए और आपको लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. उसके बावजूद भी ऐसा सब कुछ रहेगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई विल टेक योर इंटरनल्स, यू पीपल वुड बी लाइक कि सर हमारे इंटरनल में 0 हैं, 10 हैं, 5 हैं. मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि आप इस हिसाब से तो क्लास में 10 भी किसी के आने वाले हैं. I mean, those who are not taking, and they are more than 90% of the class. Now look at this. Now everyone will blame me for this. कि सर ने तो ऐसा कर दिया, सर ने तो ऐसा कर दिया. And I know वो थोड़ा सा that's something like if you really want to do something, if you really want to do correct things in your life, what happens? There are the repercussions. They are the faculty. They ask, सर इतने कम मार्क्स दे रहे हो बच्चे को, इतने कम मार्क्स. अभी बच्चे कुछ करेंगे तभी तो देंगे. आई एम नॉट here to pamper my students. I'm not Rajma Chawal that everyone should like me. But at the same time, they judge the teacher on the basis of how good marks you are giving to students. But again, मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ. मुझे पता है 3.5 साल हो चुके हैं, तो मैंने भी कभी कि ठीक है तुम लोग करो मेरे साथ जैसा करना है, फिर मैं बताऊंगा इंटरनल के टाइम. इट्स नॉट अ वार्निंग या कोई धमकी नहीं है, इट्स जस्ट कि, और ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है कि कितने लड़के हैं लड़कियां हैं कौन से बैकग्राउंड से आते हैं. इट जस्ट आई जस्ट नीड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स. इफ दे आर कमिंग इन माय क्लास, इफ दे आर learning irrespective of anything, I admire them. One of my students last year, it's very funny, from GMC, when I was teaching one of the students, she was like, I don't remember her name, she was like Agarwal, which is उसका नाम श्रेया अग्रवाल. So she was not there in this entire semester, and when I finalized the internal, मैंने शायद उसे 7 नंबर दिए थे 25 में से. ऑनलाइन की बात है, इनकम टैक्स ही पढ़ा रहा था मैं. तो एंड शी टॉक टू मी एंड शी मेड अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, सर मैं इसलिए नहीं आया उसलिए नहीं आया. आई सेड कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चलो ठीक है, आपको कोरोना हो गया था, ठीक है आप मुझे अपनी रिपोर्ट दे दो, सेंड इट टू मी एंड आई विल कंसीडर, आई विल टेक योर वाइवा एटलीस्ट. शी वाज लाइक, सर रिपोर्ट तो नहीं है. मैंने बोला अच्छा पेरेंट्स से बात करा दो. शी वाज लाइक सर पेरेंट, मतलब एक तरह से शी वाज लाइक शी हैज ऑल द एक्सक्यूजेस. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट शी सेड कि सर आप भी बनिया हो मैं भी बनिया हूँ, तो थोड़ा सा कर लो कुछ, लाइक बनिया बनिया की हेल्प कर देता है. So it was so childish that she was saying this. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. मेरे पास अगर स्टूडेंट है, मैं उसी स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ. अगर आप में से कोई नहीं आ रहा क्लास में तो कोई मेरा दुश्मन थोड़ी है. बट होता नॉर्मली ये स्टूडेंट दे यूज्ड टू लाइक से बैड थिंग्स अबाउट अ टीचर कि अरे वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है, ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे खुद ही फील नहीं आता आपकी क्लास लेते हुए. मुझे पता है कि मैं कितना बिना मन के पढ़ा रहा हूँ आपको, और खासकर 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है. What I will do after that, afterward, after some time, I'll also, you know,
I will not put the effort which I can put in this class. मैं भी ठीक है कि हाँ ठीक है नॉर्मल पढ़ा के पढ़ा दिया. I don't feel good actually. मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ. मैंने इसी कॉलेज में देखा है ये सब. Yes, question देखते हैं. There is a question. Shall I share the question with you all? वैसे question छोटा सा है. If I read the question, I think वो ज़्यादा better रहेगा. ठीक है? Yes, sir. तो Yes. आवाज आ रही है? तो क्वेश्चन है ये. Sorry. A firm is considering to purchase a new machinery costing 1,20,000. यानी नई मशीन की कॉस्ट आने वाली 1,20,000. The installation charges will be 25,000. Obviously, it will be added in it. तो कुछ मशीन 1,45,000 की हो जाएगी. This decision will result in increase in working capital requirement by rupees 15,000. यानी आपको नई मशीन लाने पे आपको वर्किंग कैपिटल का 15,000 का खर्चा भी करना पड़ेगा. The machine is expected to provide annual cash inflows before depreciation, which is EBIT, and tax 70,000. यानी आपको इनफ्लोज हर साल होगा इस मशीन के आने से 70,000 का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. और उसके बाद ये मशीन 5 साल के बाद इसे 50,000 में बेचा जा सकता है. Firm uses straight line method of depreciation and income tax is 35%. क्या कैलकुलेट करना है? मैं कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन कैसा लगा? इजी है, मुश्किल है, बस नहीं समझ आया? So easy है sir. Easy. So what I will do now, I'll enter everything on my screen, and then you people start solving this question. And उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपने आपके आंसर क्या. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये आपका आया है 2014 में, राइट? 2014 में यानी कि फाइनल ईयर में है ना? Yes, तो sir. हाँ ये मेरे वक्त आया था, राइट? ये क्वेश्चन जब मैं फाइनल ईयर में था, तो शायद मैंने भी सॉल्व किया होगा. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है ये. एक मशीन की कॉस्ट है कितनी? 14,000. ठीक है. अरे क्या लिखा हूँ मैं? 14 120 120. इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 25. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 15,000. इस मशीन से आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं EBIT बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, वो मिलने वाले हैं आपको 70,000 के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. वो 5 साल तक ये बेनिफिट्स मिलेंगे. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, salvage value of the same machinery. Salvage value is 50,000. Now, इसके बाद इनकम टैक्स रेट दिया गया है 35%. टैक्स रेट. Okay. जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को and please let me know your answer. Start solving this question. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा? So 1,60,000. 1,60,000 कैसे आया? 1,60,000 बताइए. First of all, I calculate the total cost of machinery, which is 120,000 plus 145. 25,000.
Good. Then I add the working capital. Okay, working capital 15,000, right? Right? 15,000 है ना working capital. Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. Yes, sir. So initial cash outflow is 160. Yes, class, everyone? 160. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Aman, Nikhil, Ashija, Yes, Saurabh, sir. 160. Yes, sir. Clear है. Yes, Yes, sir. sir. 160. Krishna, Piyodi, Divanshu. Yes, Yes, sir. sir. Okay. बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स पता है कि जो वर्किंग कैपिटल है बच्चे वो तो स्टार्टिंग में खर्च होंगी ना। और आप मशीन लगा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल उसने ये नहीं कहा कि हर साल खर्च हो रही है, उसने कहा क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल है तो ये आप मान के चलिए कि वो फर्स्ट टाइम ही वर्किंग कैपिटल लगती है। इट मेक सेंस। अब नई मशीन लाए तो आपको उस पर जो रॉ मटेरियल चाहिए वर्किंग कैपिटल यूज के लिए चाहिए वो आपको फर्स्ट टाइम चाहिए, राइट? तो इसलिए इन्होंने बताया 15,000 का वर्किंग कैपिटल लग गया। ठीक है। So we all know ICO initial cash outflow is 160. मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। Now start solving CAFAT. Cash flow after taxes for year 1 to year 5. 5 सालों का निकालना है ना, राइट? Yes, sir. बताइए। साथ ही साथ सॉल्व करते हैं, आप मुझे बताते रहिए। So 64,500 cash flow. 64,500 Yes, sir. कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। बताइए। EBIT देखिए 70,000. हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन, ईबी सॉरी ईबीडीआईटी होता है, राइट? एबिटेटा कहा जाता है इसे। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ आपको ईबीआईटी नहीं मिलेगा, ईबीटी एबिटेटा। ईबीआई यानी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना? कितना है क्वेश्चन में, कितना है? 70,000। Yes, sir. आप बताइए सबसे पहले आप क्या माइनस करेंगे आप? सर अभी फिर तो सर Depreciation. डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. हाँ, क्योंकि देखिए ये ना ऐसे चलता है, पता होगा आपको, पहले डेप्रिसिएशन फिर इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर अमोर्टाइजेशन। ठीक है तो ना? सर ये जो EBIT आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख रखा है ये वाला, हाँ ठीक है। वो EBITDA है. हाँ, मैंने जब लिखा था मैंने बताया था ईबीआईटी बिफोर डेप्रिसिएशन, तो मैं इसे ना ठीक ओ, कर लेता हूँ, मैं इसे ईबीडीआईटी कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है. यस सर. तो क्वेश्चन में भी ये लिखा है, अगर आप एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन सेज द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस अमाउंटिंग 70,000। ठीक है। ओके सर. हाँ, यस 70,000। तो अब सबसे पहले आप क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। यस. डेप्रिसिएशन 19,000. कितना? 19,000. 19,000. अच्छा 19, एक सेकेंड। मशीन है 120, 145, 145 माइनस 15, कितना हुआ? 95 ना? 95 डिवाइडेड बाय 5, 19 5 जा 95। ठीक है, यही होगा ना? यस सर. Yes. 19,000. ठीक है, 19,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, आपके पास आया ई बी आई टी कितना? 50 51,000. 51,000. 1000। इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्सेस माइनस कर देंगे।
35% है। एक सेकेंड, 5 17850 कितना? 17850 अच्छा, टेक्सास 17850, यानी ये हो जाएगा 33,150। हाँ ठीक है, 33,150, ठीक है। What is it? It is earning before, sorry, it is PAT. सी यस पैट सॉरी PAT आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एडेड बैक, एडेड बाय यस ऐड कर दो। Depreciation was 19, now we have added back 19,000, 52,150। सही है, सबको क्लियर है? 52,150। Yes. यस सर Right. It is a cash inflows for how many years? 5 4 years no 4 years 4 years, because we needed to calculate terminals as well, right? Terminal. यस क्वेश्चन को ऐसे करोगे ना तो वो कितना आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वेरी सिंपल, सिस्टमैटिक तरीके से। नाउ ये तो रहेगा रहेगा, यस और नो? यस सर अब ऐड क्या करना है, डिडक्ट क्या करना है, ये हमें देखना है, राइट? अब बताइए। सर वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड होगा ओके, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल लगाई थी वो वापस मिल जाएगी लास्ट ईयर में। वर्किंग Yes, sir. कैपिटल released. How much was the working capital we had employed? 15,000 15,000. Then So salvage value हो जाएगा 12117 ना, 17150. Yes, this is the cash inflow for fifth year. Cash inflow for CFT of fifth year. अच्छा, क्या आप मुझे पेबैक पीरियड बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? so just a second. हाँ श्योर। So 3.06 3.06 आपने ये डायरेक्ट किया होगा ना, 160 डिवाइडेड बाय 52,150, राइट? डायरेक्ट डिवाइड कर दिया Sorry. होगा। I mean 160, you just simply divided 160 by 52.150 ना, ये देखो। आपने आई थिंक आप देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट 4 ईयर के कैश फ्लो सेम है, यस, और आपको ये भी पता है कि ये जो 160 है फर्स्ट 4 ईयर में तो इजिली रियलाइज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्योंकि आपके कैश फ्लो सेम है फर्स्ट 4 ईयर के, तो आप 160 को 52,150 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि हर साल इतना ही हो रहा है ना रियलाइज, तो सीधा डिवाइड कर Yes, दो तो आपकी yes. कैलकुलेशन आ जाएगी 3.60 3.60 ईयर्स। ऐसे ही
यानी कि पे बैक पीरियड इज समथिंग कि आपको लगभग 3 साल लगेंगे इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. It's Yes. clear. यस सर। हाँ ठीक है। तो ये पे बैक पीरियड है। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ARR में बिकॉज इट्स टाइम एंड थोड़ा सा और भी चीजें हैं अभी, तो नेक्स्ट क्लास में हम ARR की बात कर लेंगे, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दे आर द डिस्काउंटिंग टेक्निक। उसमें IRR, ARR, MIRR, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं PI, राइट, वो सब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है एवरीवन? Okay. पिछली क्लास में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी डेफिनेटली। Yes, sir. Yes. ठीक है, साक्षी जी आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Good, good. Maybe Ritik is not. Okay, fine. We have Ashija, Saurabh Kumar. Saurabh, what's your roll number, Saurabh? ये 156 सर। 156, ठीक है सौरभ। अमन है, निखिल है, रचना भी है। दिव्यांशु आप लास्ट क्लास में थे ना? हाँ थे आप, ठीक। थैंक यू सो मच। Yes, sir. I was there. ठीक है दिव्यांशु, तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। I was there, sir. Thank you, sir. ठीक है दिव्यांशु, ठीक है।